Let's start the chapter 2, plants. Okay. We have completed the topic reproduction through seeds, means reproduction in plants through seeds. It was completed. It has completed last day. And the structure of seeds, growth of the plant and seed germination. Is there any confusion in this topic? Stages of germination in bean seed. Last day I have taught you in the class. Any confusion, any problem in this topic? If you have, no ma'am. Repeat it. Okay. Activity also it has completed in page number 18. Both activity Yes, it has completed. yes ma'am. Srijan is present or not? Srijan, na? Yes, region. Is he present? No ma'am. Okay. Now today I will start the new topic, reproduction in plants, and the second topic is reproduction by different parts of the plant. Okay, just above this topic it is written in the box, a healthy birch tree can produce up to 1 million seed a year. Birch tree, लास्ट डे मैंने बताया था ना birch tree क्या होता है. It is a type of tree which produces a million of seed in a year. एक ईयर में ये मिलियन मीन्स लाखों में ये सीड प्रोड्यूस करता है. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? हेल्दी बीच ट्री भी कैसी होनी चाहिए? हेल्दी. ये नहीं कि बीच ट्री है वो उसमें अच्छे से मीन्स वो ग्रो नहीं कर रहा है, डेवलप नहीं कर रहा है और उसके पास मिलियन ऑफ सीड होंगे. नो, सीड विल बी देयर which is a healthy. And it is found in mountain forest. White, I am telling, light brownish color, brown जैसा उसकी कलर होती है बीच ट्री की, और उसके जो पत्ते होते हैं ना वो हवन में यूज किए जाते हैं. आप कभी भी देखना वो सामग्री जो होती है ना हवन की, उसमें वो भोजपत्र कहलाते हैं हिंदी में. वो बीच ट्री का ही पार्ट होता है. ओके, यू विल सी इन दैट मीन्स वो जो आते हैं ना थिंग्स, चीजें जो हवन में यूज होते हैं उसमें आप देखना. ठीक है, वो बीच ट्री का ही पार्ट होता है. पेपर उसकी मीन्स लाइट व्हाइट ब्राउन ब्राउनिश टाइप की कलर में होती है. ओके, let's start the topic reproduction by different parts of the plant. Reproduction by different getting there. Reproduction by different parts of the plant. Reproduction, you are learning in this chapter reproduction of plants. Plants कैसे reproduce करता है. ठीक है, reproduction मीन्स क्या होता है? अपने जैसे ही बहुत सारे अपने जैसे ही बहुत सारे को वो रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. So by different parts of the plants, you will learn right now reproduction by different parts of the plant. Means plant के different parts से reproduction कैसे होते हैं. Let's see.
In many plants, reproduction takes place through other parts of the plants. Means we are looking different types of plants surrounding in our surroundings. हमारे surroundings में हमारे चारों तरफ बहुत सारे आप plants देख रहे हो, देखते हो ना, बहुत सारे plants आप देख रहे हो, जैसे example like rose plant, hibiscus, पीपल ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री, बनाना ट्री, ये सारे क्या हो गए, बनाना प्लांट्स, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. एंड यू आर लर्निंग हियर रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. मींस वी आर जनरली वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि सीड को हम लोग मिट्टी में डालते हैं, सॉइल में, एंड वी वाटरिंग ऑन दैट सीड. आफ्टर फ्यूअर डेज बेबी प्लांट्स डेवलप्स इन दैट. ठीक है, हम लोग कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं कि उससे बेबी प्लांट्स निकल गए. हम लोगों ने सीड को सॉइल में डाला, ऊपर से वाटरिंग किया, तो क्या निकलते हैं, बेबी प्लांट उससे. ठीक है, हम लोग बस इतना जानते हैं. बट नो, देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वी यूज फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, we do this different types of process for reproduction by different parts of the plant. Understood everyone? Okay. A new plant can grow. First point, पहला point क्या होगा, देखो ना भैया, by from the underground state. मैं क्या मैं From the under लैग कर रहा है. means underground state. अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है उससे भी रिप्रोडक्शन होते हैं. ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम कहाँ होती है, कौन से ऐसे प्लांट में, पोटैटो प्लांट आपने देखा है, यस मैम, यस मैम, यस मैम. पोटैटो एंड जिंजर प्लांट में आपकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है, वहीं से रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, it is a underground parts of potato and ginger. Getting, ये दोनों में अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, यहीं से इसकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है. विनायक, लुक हियर, you are in problem. This is the underground stem in potato and ginger. Second point, by cutting a stem. Second point is by cutting stem. Have you seen this type of reproduction by cutting a stem? Means तनाएं जो होती है, just above the soil there is a stem. Root is a underground of the soil. Root कहाँ पे होती है, under the soil, and just above the soil this is a root, shoot part. उसे shoot कहते हैं, stem कहते हैं. ठीक है, stem को हम लोग क्या करते हैं, उसे कट कर देते हैं. ठीक है, इस तरह से नाइफ से कट करके ऐसे उसे हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, पेड़ को, प्लांट्स को लगाते हैं, वहां से भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है. लाइक रोज प्लांट, हिबिस्कस, इसे आप लोग क्या कर सकते हो, स्टेम को इस तरह से कट करके लगाओगे तो ये लग सकते हैं. आयुष, व्हाट आर यू डूइंग? And third point, from roots, or and the fourth point, third point, I will discuss this topic in details in the next page. Okay, first write from roots or fourth point,
from leaves of a plant. Leaves of a plant. So these type of reproduction from the underground stem, by cutting stem, from roots, and from leaves of a plant. This is the 4 types, means this is the 4 different parts of the plant by which plants reproduce or produce new plants. Okay. This type of reproduction in which a new plant arises from some part of the plant without the involvement of seeds, means यहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है बिना सीड के इन्वॉल्वमेंट के, मीन्स यहाँ पे सीड इन्वॉल्व नहीं होता है फिर भी यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जाती है। हम लोग कहाँ तक जानते थे कि हम लोग जब सीड को मिट्टी में डालते हैं, जब हम लोग सीड को सॉइल में डालते हैं और ऊपर से वाटरिंग करते हैं ना, तो न्यू प्लांट्स ग्रो करती है। ओके, बट देयर आर सम डिफरेंट प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पे कुछ अलग अलग से प्रोसेस दिए गए हैं जिससे रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में। ठीक है, लाइक फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम मीन्स जब मिट्टी के अंदर स्टेम होगी वहीं पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। बाय कटिंग स्टेम को कट करके हम लोग लगा सकते हैं, वहां पे रिप्रोडक्शन होती है। फ्रॉम रूट्स से होती है रिप्रोडक्शन, एंड फ्रॉम लीव्स ऑफ अ प्लांट, लीव से होती है रिप्रोडक्शन। दिस इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके, फॉर रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे बता सकते हो, इज देयर एनीवेयर सीड इज इन्वॉल्व इन दिस 4 प्रोसेस। इस 4 प्रोसेस में सीड कहीं पे इन्वॉल्व है अभी? No. आयुषी शर्मा, विनायक, अभी बता सकते हो यहाँ पे कहीं पे सीड है, सीड इन्वॉल्व हो रही है अभी? आयुष प्रकाश, Ma'am, board is not clear. आई एम आस्किंग, आई एम टेलिंग, ये मुझे बताओ। फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम, बाय कटिंग स्टेम, फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम लीव्स ऑफ अ प्लांट, क्या यहाँ पे मैंने सीड का नेम लिया? मैं नेम ली हूँ यहाँ पे सीड का? No, ma'am. तो यहाँ पे सीड इन्वॉल्वमेंट है? अगर मैं बोलती हूँ फ्रॉम सीड, No, ma'am. फ्रॉम द अंडरग्राउंड सीड, तब कह सकते हैं कि सीड यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, बट आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ सीड्स। एंड यू कैन सी if board is visible to any other students, so you can see here from the underground stem, by cutting stem, from roots, from leaves of a plant। तो यहाँ पे सीड की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस तरह की रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव। से एवरीवन, Vegetative production. vegetative production, okay, is where their seed is not involved in reproduction, so this type of process is called as vegetative reproduction। वैसे रिप्रोडक्शन जहां पे सीड इन्वॉल्व नहीं होता है, वैसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं? अंडरग्राउंड स्टेम से वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, कहीं पे स्टेम को कट करके, कहीं पे रूट से, और कहीं पे फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट। और अंडरस्टूड? सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, it is of great importance because it is an easier and faster method of increasing the number of the same plants। ये बहुत ही easy और faster method है प्लांट्स की रिप्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। ठीक है, मीन्स आप लोग सेम प्लांट के ग्रो के लिए अगर चाहोगे कि बहुत जल्दी इसे ग्रो करवाना है, डेवलप हो जाए कि जल्दी से इसकी प्लांट लग जाए हमारी बगान में, बगीचों में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सीड को डालने का इंतजार करेंगे? नहीं, ये बहुत ही जल्दी इससे होती है अगर ये प्रोसेस अपनाओगे तो। ठीक है, ये 4 प्रोसेस जो है
रिप्रोडक्शन मीन्स सेम प्लांट की अगर चाहते हो रिप्रोडक्शन चाहते हो सेम प्लांट्स की, तो आप लोग ये 4 मेथड्स यूज कर सकते हैं. इट इज अ वेरी इजियर एंड फास्टर मेथड, ओके, फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द सेम प्लांट. अगर आपके घर में रोज प्लांट है, अगर आप चाहते हो कि मेरे घर में रोज और लग जाए, तो क्या आप प्लांट खरीद के लाओ और ठीक है, तो आपके घर में प्लांट्स अगर बड़े हो गए हैं रोज के, तो आप उसे कट कर सकते हो, आप उसके स्टेम को कट करके आप लगा सकते हो. आपके घर में रोज पूरे लग जाएंगे, भर जाएंगे एकदम. ठीक है. So it also helps to grow plants like banana which bear no seeds. और ये जो स्टेप्स हैं हेल्प करते हैं बनाना प्लांट्स को भी लगाने में जिसमें सीड नहीं होती. Let us now study how the different parts of a plant are involved in the process of vegetative reproduction. Understood? अब हम लोग देखेंगे डिटेल्स में ये सारे 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैसे इसकी रिप्रोडक्शन होती है. A. Reproduction through underground stem. Page number 19, students. Open. 19. First is from the underground stem. Reproduction through underground stem. Page number 19. These page, open it. Angel. Your camera is off. Ayush Raj, turn on your camera. मैम नेट का इशू हो गया था. Reproduction through underground stem. In plants like banana, ginger, and potato, a new plants grow from the underground stem. ये न्यू प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो कहाँ से करते हैं? स्टेम जो अंडरग्राउंड में होती है, अंडर द सॉइल. From there, new plants started to grow. Okay. In these plants, a part of the stem present underground. इस प्लांट में क्या होते हैं कि पार्ट ऑफ अ स्टेम का जो पार्ट वो अंडरग्राउंड में प्रेजेंट होते हैं. ग्रोज एंड डेवलप रूट्स एंड शूट्स टू मेक न्यू प्लांट्स. ये जितने भी मीन्स रिप्रोडक्शन की जो पार्ट्स होती है वो अंडरग्राउंड में होती है, वहीं से वो ग्रो करते हैं. ठीक है. इन दीज प्लांट्स अ पार्ट ऑफ द स्टेम प्रेजेंट अंडरग्राउंड grows and develops roots and shoots to make new plants. Getting here? New plants you can see. This is the eye part of the potato and underground stem. This is the example. First point A. Now let's say understood. समझ में आई? First reproduction through underground stem. Everyone? Yes, ma'am. Okay. Now the B, reproduction by stem cutting. Reproduction stem को कट करके कैसे होती है? New plant can also be grown by using the stem cutting of a grown up plant. Means जो plants grow कर रहे हैं ना, उसे भी कट करके आप new plants grow करवा सकते हो. Stem cuttings are used for growing plants like sugarcane, वाइगनविलिया, रोज एंड ग्रेप्स. ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इसमें आप क्या करोगे? जो ग्रोन अप प्लांट्स होते हैं ना, उसके स्टेम को कट करके आप न्यू प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं. जैसे आपकी रोज ग्रो कर रही है, रोज उसमें से 2 ये इस तरह का स्टेम निकला है ना, उसमें कुछ स्टेम को कट कर दीजिए और उसे कट करके आप कहीं और पे लगा दीजिए. तो आप देखो इस प्रोसेस को, रोज के प्रोसेस को, क्या वो ग्रो किया है? रोज कटिंग यू कैन सी. और ये सारे प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग प्रोसेस है ना, ये कहाँ पे यूज हो सकती है? शुगर केन, वाइगनविलिया, रोज एंड ग्रेप्स प्लांट में. ठीक है. अंडरस्टूड? गेटिंग आकाश? अभी कुमार? आयुष राज समझ में आ रही है? Yes. ओके. Yes, ma'am.
तो क्या कर सकते हो, रोज की जो ग्रोन अप प्लांट्स होती है उसे भी आप कट कर सकते हैं और न्यू प्लांट्स उससे ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, आप इस प्रोसेस को अपनाकर इस तरह से प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हो स्टेम कट करके। ठीक है, रिप्रोडक्शन थ्रू रूट। When the fleshy roots of some plants like dahlia and asparagus are placed in water, very many roots appear at the lower end and the shoot appear at the upper end. क्या होता है ये रिप्रोडक्शन थ्रू रूट? जब रूट की जो रिप्रोडक्शन होती है ना, फ्रॉम रूट स्टार्ट पॉइंट, when the fleshy roots of the some plants, कुछ ऐसे plants होते हैं उसके जो fleshy roots होते हैं। fleshy means like आप देख सकते हो डहलिया, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, पता है शकरकंद? डू यू नो अबाउट इट? शकरकंद, Yes, ma'am. Potato. स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ये सारे जो होते हैं ये फ्लेशी होते हैं, फ्लेशी रूट्स होती है इसकी। दहलिया, एस्पेरेगस आर प्लेस्ड इन वाटर, वाटर में प्लेस्ड होते हैं। एंड वेरी मेनी रूट्स अपीयर एट लोअर एंड, इसके नीचे में बहुत सारे रूट्स दिखते हैं, छोटे छोटे, देख सकते हो आप फिगर में, इस तरह का होता है। सपोज ये स्वीट पोटैटो है ना, ये ऐसे लगा हुआ है और इसके नीचे में बहुत सारे ऐसे 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 मेनी रूट्स ग्रो करते हैं। देखा है आप लोगों ने ऐसे ऐसे? Yes, ma'am. देखा है ना? आप देखोगे स्वीट पोटैटो Yes, ma'am. ना तो लगेगा कि ये और ग्रो कर रहा था क्या, ऐसा। हाँ, in sweet potato new plants arise from its root itself. In sweet potato new plants arise from its root itself. उसमें क्या होता है कि रूट इसके खुद स्वीट पोटैटो से ही वो ग्रो करने लग जाता है, समझे? Excuse me, ma'am. नंबर 19, Ma'am, what is the meaning of fleshy roots? फ्लेशी रूट्स, जैसे कि स्वीट पोटैटो, डहलिया, ये सब यहीं पे इसकी जब ग्रो होती है जमीन के अंदर ही ना, वहीं पे वो क्या होती है, फ्लेशी होती है। जैसे कैरेट हो गई, ये सारे स्वीट पोटैटो जमीन के अंदर ही निकलते हैं ना वो, समझ में आई? Yes, ma'am. वहीं पे उसकी ग्रो करने लगती है रूट्स, बहुत सारे रूट्स दिखते हैं, ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर ही। देखा है आप लोगों ने? अंदर तो ग्रो करते आपने नहीं देखा Yes, होगा, ma'am. लेकिन आप स्वीट पोटैटो जब लोगे ना हाथ में, तो उसमें आप बहुत सारे रूट्स निकला हुआ देखना, देखे हो शायद, क्योंकि आप उसमें देखा है। Sweet potato खाई भी हूँ. शकरकंद आप खाते भी हो, उसमें आप जब लिए होगे ना तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे रूट्स निकले हुए जैसे रहते हैं, छोटे छोटे पत्ते पतले से। ओके, पेज नंबर 20, रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ। लीफ के थ्रू कैसे होती है रिप्रोडक्शन? फ्रॉम लीव्स ऑफ अ प्लांट, किस तरह से होती है? इन प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम, न्यू यंग प्लांट्स अराइज फ्रॉम द नोचेस ऑफ द लीव्स वेयर स्मॉल बर्ड्स आर प्रेजेंट। नोचेस, डू यू नो? ये नोचेस होती है, ये लीव्स है, ये आपकी जो ये साइड होती है ना लीफ प्लेट, ये नोचेस है। गेटिंग एवरीवन? व्हाट इज इट? नोचेस। Notches. Yes. ये नोचेस पार्ट होती है, ठीक है। इन प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम, न्यू प्लांट्स, यंग प्लांट्स अराइज फ्रॉम द नोचेस ऑफ द लीव्स। पत्तों की ये साइड से जो क्या होती है, नए प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, न्यू यंग प्लांट। दीज स्मॉल बर्ड वेयर स्मॉल बर्ड्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स प्रेजेंट होती है, कलियां प्रेजेंट होती है जिससे फ्लावर्स बनते हैं। These small birds get detached from the leaf and develop into new plants. ये छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं क्या करते हैं, लीफ से डिटैच होते हैं, अटैच नहीं, अलग हो जाते हैं और उससे नए नए फिर प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। देखो आप देख सकते हो, उससे समझो कि ना उससे बहुत सारे फिर पत्ते निकल रहे हैं ब्रायोफाइलम में, दिख रही है? ये फिगर देख रहे हो ना? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. रिप्लेट, इससे फिर एक पत्ते निकल रहे हैं, उससे फिर निकलेंगे, मीन्स ये मल्टीपल होते जाता है. ओके, we can thus say that the different plants reproduce either through seeds or from some other parts of the plant. They maintain their number and race through an appropriate method of reproduction. Means ये अपने जितने भी plants की जो रेस है, मैंने रेस बताया था कि उसके टाइप्स को वो क्या करते हैं, घटने नहीं देते. ये रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होती है कि उसकी संख्या, उसकी नंबर बने होते हैं, इंक्रीमेंट होते रहती है, इंक्रीज होते रहती है, घटती नहीं है. ठीक है, जैसे पॉपुलेशन क्या है, बहुत दिन दो दिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो ये प्लांट्स की जो इस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, इससे इसकी जो टाइप्स हैं कम नहीं हो रहे हैं, वो बनाए रख रहे हैं एक लिमिट. ठीक है, ओके डियर, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट सीड डिस्पर्सल टॉपिक. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Yes, ma'am. If you have any problem, you can ask in the next class. Okay, Bye, ma'am. goodbye. Bye, ma'am. Bye, have a nice day to all of you.